السلام علیکم ناظرین۔ چیف کمانڈر اپنے 3 نقاب پوش سیلروں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے سہارا دے کر مجھے ٹینک سے باہر نکالا۔ میں نے ماسک اتار دیا، میرے فلیپر الگ کیے گئے۔ چیف کمانڈر نے میرے ساتھی کے بارے میں پوچھا تو میں نے سر جھکا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا ساتھی کمانڈو شہید ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں ساتھ والے کیبن میں چیف کمانڈو کے سامنے بیٹھا، اسے اپنے مشن کی روایت سنا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سمندر کے اندر تموج پیدا ہوا تھا اور اس کی شدید لہروں کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیرس کے ایٹمی ری ایکٹر کا کچھ نہیں بچا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا، لیکن تم نے اپنے وطن کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا ہے۔ بھارتی حکومت کو دوبارہ نیوکلیئر ہتھیار تیار کرنے میں اب کافی وقت لگے گا۔ اتنی دیر تک ہم اپنا دفاع مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق بھارتی وزارت دفاع 2 روز کے بعد پہلا نیوکلیئر میزائل ٹیسٹ کرنے والی تھیں۔ اب دوست سمندر میں واپس چلی جا رہی تھی۔ چیف کمانڈو نے پھر کہا، تمہیں واپس اسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے تمہیں تمہارے شہید ساتھی کے ہمراہ اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد چیف کمانڈو نے کوئی بات نہ کی اور چلا گیا۔ میں کافی پی رہا تھا۔ کافی پینے سے میرے جسم میں نئی توانائی سی آ گئی تھی۔ جس وقت اب دوست نے مجھے ربڑ کی کشتی کے ذریعے ساحل کی چٹان تک پہنچایا، اس وقت پوپ پھٹ رہی تھی۔ کشتی مجھے ساحل پر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ میں اپنے لباس میں تھا، یعنی پتلون، چپل اور بوٹ شرٹ۔ ٹرانسمیٹر اب بھی میری جیب میں تھا۔ میں اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چٹانوں کے قریب سے ہوتا ہوا میں الفانٹا غار کی ایک بھی سرنگ میں داخل ہونے کی بجائے آگے سے ہو کر اس کے دروازے کے سامنے والے ساحل پر آ کر ایک طرف درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ چھوٹے سے باغ میں کچھ اور سیاہ بھی سو رہے تھے۔ میں بھی گھاس پر لیٹ گیا۔ اگرچہ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، لیکن نیند غائب تھی۔ مجھے بار بار اپنے ساتھی کمانڈو پٹیل کا خیال آ رہا تھا۔ وطن عزیز کی سالمیت کی خاطر اس نے دیار غیر بلکہ دیار دشمن میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فاتحہ پڑھ کر اس گمنام شہید کی روح کو ثواب پہنچایا اور سگریٹ سلگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا اور تاریخی غار دیکھنے کے لیے سیاحوں اور شہر کے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ پہلی کشتی ساحل پر آ کر لگی تو میں اس کشتی میں سوار ہو کر واپس گیٹ وے انڈیا تک آ گیا۔ یہاں سے ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ وہاں آتے ہی انگریزی کا ایک اخبار خریدا۔ اس میں سیرس نیوکلیئر پلانٹ کی تباہی کی کہیں بھی کوئی خبر نہیں چھپی تھی۔ ظاہر ہے بھارتی حکومت نے اسے سیگا راز میں رکھا تھا۔ ایسی خبر کسی اخبار میں نہیں چھپ سکتی تھی۔ اس رات میں نے اپنے بند کمرے میں پلنگ پر بیٹھ کر اپنے باس سے رابطہ قائم کیا۔ باس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ دھماکہ اس قدر بھیانک تھا کہ نیوکلیئی پلانٹ کا 95% حصہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ باس نے مجھے یہ خبر بھی سنائی کہ میری عدم موجودگی میں پالم پور سے اپنا آدمی مسٹر ٹنڈن کو میری خیریت کا سگنل برابر بھیج رہا ہے۔ مسٹر ٹنڈن کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیپٹن مہتا ریسٹ ہاؤس میں مسلسل آرام کر رہا ہے اور وہ بہت کم باہر نکلتا ہے اور دن کا زیادہ حصہ گیتا پڑھنے میں گزارتا ہے۔ وہ کہیں آتا جاتا نہیں اور اسے کوئی ملنے بھی نہیں آتا۔ اپنے ایجنٹ نے میرے لیے چھتری کا کام کیا تھا۔ اگر ہمارا ایجنٹ میرے پیچھے لگے ہوئے جاسوس کا خفیہ کوڈ معلوم نہ کرتا اور صرف اسے ہلاک کر ڈالنے پر ہی اکتفا کرتا تو میرے لیے اپنے کمانڈو مشن پر پالم پور سے روانہ ہونا ناممکن تھا، کیونکہ جب مسٹر ٹنڈن کو اپنے آدمی کے پیغام دلی نہ پہنچتے تو وہ فوراً تحقیقات کے لیے کسی دوسرے آدمی کو روانہ کر دیتا، جو مجھے پالم پور کے ریسٹ ہاؤس میں نہ پا کر اس کی اطلاع دلی میرے باس مسٹر ٹنڈن کو پہنچا دیتا اور نیوکلیئر پلانٹ کی تباہی کے بعد دلی پہنچتے ہی مجھے گرفتار کر لیا جاتا۔ اب مسٹر ٹنڈن اپنے آدمی کی گمشدگی کے باوجود مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور پھر اس کا آدمی اس کی خفیہ کوڈ میں یہ پیغام دیتا رہا تھا کہ پالم پور میں ہی میں ہوں، یہاں میرا کوئی کام نہیں بچا تھا۔ چنانچہ اس روز میں نے ایک فلائٹ پکڑی اور امبالے پہنچ گیا۔ امبالے سے دوسری فلائٹ لی اور شام کے وقت پالم پور ریسٹ ہاؤس میں آ کر بستر پر ایسے لیٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نوکر سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے امبالے جا رہا ہوں۔ اگلے روز میں نے سجاتا کو فون کر کے بتا دیا کہ میں فی الحال ریسٹ ہاؤس میں ہوں اور اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ یہاں اپنے اس ایجنٹ سے میری ملاقات نہ ہوئی جس نے میرے پیچھے لگے ہوئے مسٹر ٹنڈن کے جاسوس کو ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش بھی غائب کر دی تھی۔ میں مزید کچھ روز پالم پور کی پرسکون پہاڑی فضا میں بسر کرنا چاہتا تھا، مگر دفتر سے مسٹر تیواڑی سیکرٹری نمبر 2 کا تار آ گیا کہ دفتر جلدی پہنچو۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے کس لیے بلایا جا رہا ہے۔
साइरस न्यूक्लियर प्लांट की तबाही कोई मामूली बात नहीं थी। मैं टेलीग्राम मिलते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मिस्टर तिवाड़ी एयरपोर्ट पर मौजूद था। वो अपनी गाड़ी में आया था। दिन के 3 बजे मैं दिल्ली पहुंचा। सेक्रेटरी तिवाड़ी मुझे सीधा दफ्तर ले गया। रास्ते में उसने मुझे बता दिया कि साइरस प्लांट को तखरीबकारों ने नुकसान पहुंचाया है। मैंने तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए श्रीलंका के सनहाली तखरीबकारों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, हम पाकिस्तानी तखरीबकारों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। मैंने कुरेदने की खातिर पूछा कि अपने प्लांट का नुकसान कितना हुआ है। सेक्रेटरी तिवाड़ी को बता नहीं था क्योंकि मैं सेक्रेटरी 1 था। मेरी हैसियत सेंट्रल इंटेलिजेंस के एक अहम ऑफिसर की थी। तिवाड़ी की ज़बानी मालूम हुआ कि साइरस प्लांट की लैब नंबर 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और न्यूक्लियर प्लांट की आधी से ज़्यादा इमारत उड़ गई है। इस तबाही में बहुत सी जानें भी ज़ाय हुई थीं। उनमें 4 बड़े आला पाए के भारतीय साइंसदान भी थे। ऑफिस में हर किसी का चेहरा उतरा हुआ था। सभी परेशान परेशान दिखाई दे रहे थे। तिवाड़ी ने मिस्टर टंडन को फ़ोन पर बताया कि कैप्टन मेहता पालमपुर से आ गए हैं। मिस्टर टंडन ने फ़ौरन हम दोनों को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट आने के लिए कहा। मिस्टर टंडन अपने एयर कंडीशन कमरे में पोस्ट पर हाथ रखे बेचैनी से टहल रहा था। हमें देखकर सोफे की तरफ इशारा किया, फिर खुद भी सोफे पर बैठ गया। सिगार को स्ट्रे में मसल दिया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इंतहाई फिक्रमंद है। मेरी तरफ एक गहरी नज़र से देखा और बोला, कैप्टन मेहता, मुझे उम्मीद है कि तिवाड़ी ने तुम्हें तमाम हालात बता दिए होंगे। मैंने अपने चेहरे पर परेशानी जाहिर कर रखी थी। अपने सर को इंतहाई अफसोस के अंदाज में हिलाते हुए कहा, सर आखिर सिक्योरिटी स्टाफ कहाँ था? क्या वो सो रहा था? ये हमारी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा दाग लगा है। मिस्टर टंडन ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर ने बम्बई प्रांत के 4 इंटेलिजेंस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। आला सतह पर इस सबूताज की तहकीकात शुरू हो गई है। हमें इस तहकीकात से बेखबर रखा जा रहा है। कुछ पता नहीं हमारा क्या हशर होगा। ठंडी सांस भरकर मिस्टर टंडन ने अपना सर सोफे की पूंछ से लगा दिया। सेक्रेटरी तिवाड़ी कहने लगा, सर यह काम पाकिस्तानी एजेंटों के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। टंडन ने तलखी से कहा, सवाल यह है कि हमारा महकमा आखिर किस मर्ज की दवा है? दुश्मन के एजेंट जो मुल्क में जगह जगह मौजूद हैं। हो सकता है हमारे ऑफिस में भी कोई एजेंट मौजूद हो। अंदर से मेरा दिल ज़रा सा धड़क कर नॉर्मल हो गया, मगर मैंने अंदरूनी कफियात को अपने चेहरे पर बिल्कुल ज़ाहिर न होने दिया। हालांकि मिस्टर टंडन ने यह जुमला अदा करने के साथ ही मेरी तरफ देखा था। मैंने कहा, सर हमें अपने स्टाफ की फिर से स्क्रूटनी करनी होगी। यह बहुत ज़रूरी है। मिस्टर टंडन ने मायूसी के अंदाज में अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इससे कुछ नहीं होता कैप्टन मेहता। दुश्मन के एजेंटों को स्क्रूटनी की पहले से खबर हो जाती है। बहरहाल मैंने तुम्हें और मिस्टर तिवाड़ी को इसलिए यहाँ बुलाया है कि आज रात 11 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हमें अपने ऑफिस बुलाया है। डीजी रामा मूर्ति भी लंदन का दौरा अधूरा छोड़कर आज नई दिल्ली पहुँच रहा है। तुम लोग रात ठीक 10:30 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। उस वक्त मेरी जेब में एक ऐसा खतरनाक टाइम बम था जो किसी भी वक्त फट सकता था। यह टाइम बम माचिस के साइज का ताकतवर ट्रांसमीटर था। चूँकि मिस्टर तिवाड़ी मुझे एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस ले आया था, इसलिए यह ट्रांसमीटर मेरी जेब में ही पड़ा रह गया था। मैंने उसे ब्राउन कागज़ में लपेट कर अपनी पतलून की एक भी जेब में रखा हुआ था। जितनी देर मैं मिस्टर टंडन के ऑफिस में बैठा रहा, मेरी जान पर बनी रही। अगर इस वक्त कोई भी मेरी तलाशी ले लेता तो यह ट्रांसमीटर मुझसे बरामद हो जाता और फिर जो मेरा हशर होता वो साफ ज़ाहिर है। जब तक मैं टंडन के रूबरू बैठा रहा, अंदर से मेरी हालत परेशान ही रही, अगरचे मैंने उसे किसी पर ज़हर नहीं होने दिया। मिस्टर टंडन ने मेरे पीछे जो पहला जासूस लगाया था, उसकी लाश मकबरा हमायूं में मिली थी। अब पालमपुर से दूसरे जासूस की गुमशुदगी और गालिब मौत की खबर 2-1 रोज़ में उसे मिलने वाली थी। दोनों आदमी मेरे पीछे लगे लगे मौत के घाट उतरे थे। इससे कुदरती तौर पर यही शक पड़ता था कि उनके कत्ल में मेरा हाथ है और मेरी हैसियत मशकूक है। मैं इन तमाम संगीन खतरात में घिर गया था, मगर अपनी जगह पर डटा हुआ था। इसकी वजह महज यह थी कि मैं एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसी अहम तरीन असामी पर तैनात था कि वहाँ बैठकर मैं चारों तरफ न सिर्फ निगाह रख सकता था, बल्कि पाकिस्तान दुश्मन अज़ैम को जड़ से काट सकता था। रात के पूरे 11 बजे हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुँच गए। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामा मूर्ति भी मेरे मिस्टर टंडन और मिस्टर तिवाड़ी के अलावा मौजूद थे। 5 मिनट बाद मिसेज इंदिरा गांधी एक भी दरवाजे से नमोदार हुई। मैं पहली बार उस खतून को रूबरू देख रहा था। जैसा उन्हें तस्वीरों में देखा था, बिल्कुल वैसी ही थी।
मगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का चेहरा इंतहाई संजीदा और भिंचे हुए होंठों पर एक करतगी ही थी। हम खड़े हो गए। मिसेस गांधी ने हमें इशारे से बैठने को कहा। उनका सेक्रेटरी हमरा था। सेक्रेटरी ने एक फाइल खोलकर मिसेस गांधी के सामने रख दिया। वो फाइल के वर्क उलटने लगी। कमरे में गंभीर और बोझल खामोशी छा गई। 1-1.5 मिनट तक वो फाइल का मुताला करती रही। फिर ऐनक उतार कर फाइल के कागजों पर ऐसा से रखी और अंग्रेजी में बोली, सारे सबूताज के बारे में आप लोगों ने जो रिपोर्टें सबमिट की हैं महज दफ्तरी कार्रवाई है। मैं इसे नरेश कहूँगी। मिसेस गांधी का लहजा इंतहाई तलख हो गया। आप लोग अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहे तो क्या मैं स्कॉटलैंड यार्ड से आदमी मंगवाऊँ? बड़े शर्म की बात है कि दुश्मन आपकी आंखों के सामने भारतवर्ष को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा गया और आप कुछ न कर सके। मैंने सर झुका रखा था। कौन आँखों से देखा। मिस्टर टंडन, मिस्टर तिवारी और डीजी रामामूर्ति के रंग उड़ चुके थे। उनके चेहरे छोटे से हो गए थे। ना सिर्फ उनकी नौकरियां बल्कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में था। मिसेस गांधी हम सब पर बरस रही थीं। जब वो अपने दिल की खूब भड़ास निकाल चुके हैं तो डीजी रामामूर्ति ने बड़े अदब से कहा, आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सबूताज के जिम्मेदार अफराद को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारी सारी फोर्स हरकत में है। मगरबी और मशरकी बॉर्डर को बुला कर दिया गया है। मिसेस गांधी ने टंडन की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर टंडन आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर टंडन को जैसे एक झटका सा लगा। जल्दी से हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे महकमे के आदमी दुश्मन के ठिकाने तक पहुँच गए हैं। बहुत जल्द मैं असली दुश्मन आपके सामने ला खड़ा कर दूंगा। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई मगर मैं अपनी जगह पर कायम रहा। फौरन ही मिस्टर टंडन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, दुश्मन के एजेंट हमसे बच कर नहीं जाएंगे। टंडन जी ठीक कह रहे हैं। हमारा महकमा बहुत जल्द उनको दबोचने वाला है। डीजी रामामूर्ति को कुछ हौसला मिला। उसका एतमाद बहाल हो रहा था। उसने भरपूर अंदाज में मिसेस गांधी को यकीन दिलाया कि दुश्मन के तकरीबकार बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मिसेस गांधी का चेहरा इस तरह संजीदा और गंभीर था। यह मीटिंग रात 1 बजे तक जारी रही। आखिर में मिसेस गांधी ने हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और मीटिंग खत्म हो गई। मिस्टर टंडन के चेहरे पर भरपूर एतमाद की झलक थी। लगता था जैसे उसने दुश्मन को पहचान लिया है। मैं चौकस हो गया। डीजी ने हम तीनों को ब्रीफ करते हुए कहा कि दुश्मन के किसी न किसी तकरीबकार को 1 हफ्ते के अंदर अंदर काबू करना बेहद ज़रूरी है। जैसे भी हो दुश्मन के एजेंट को गिरफ्तार किया जाए, वरना हम में से किसी एक की भी नौकरी नहीं बचेगी। मैं घर आकर लेट गया। आंखें जल रही थीं मगर नींद नहीं आ रही थी। हालात नाजुक सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मिस्टर टंडन के एम पर मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। किसी हतमी सबूत के बगैर मिस्टर टंडन मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। यह असूली तौर पर भी गलत था। कोई जिम्मेदार इंटेलिजेंस अफसर किसी दूसरे इंटेलिजेंस अफसर पर कमज़ोर वार नहीं करता। अगर कोई बैन सबूत पास न हो तो वार के उल्टा पड़ जाने का खतरा होता है। एक बात आप अपने जहन में रखें कि मिस्टर टंडन इस पोजीशन में था कि वो जब और जहाँ चाहे मुझे कत्ल करवा सकता था, लेकिन दुश्मन के एजेंट को हलाक करना उसे फरार होने का मौका फराहम करने के बराबर होता है। क्योंकि एजेंट को अगर आप मौत के घाट उतार देते हैं तो आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मकसद ये होता है कि एजेंट को जिंदा पकड़कर पूरे रेक्ट यानी पूरी टोली को अपने काबू में कर लेते हैं और मुल्क मजीद तबाहकुन तकरीबकारियों से बच जाता है। मिस्टर टंडन भी मुझे किसी सबूत की बिना पर जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। उसने मुझ पर पहला वार सजाता के जरिए घर में ट्रांसमीटर रखवा कर किया जो खाली गया। दूसरी बार उसने मेरे पीछे आदमी लगे जिनको हमेशा की नींद सुला दिया गया। मुझे अंदाज़ा था कि टंडन मेरे पीछे अब मजीद आदमी लगाएगा और मेरी एक एक नकल हरकत पर कड़ी नज़र रखेगा। मैं ये भी जानता था कि मेरा आइंदा मिशन भारत का मगरबी सरहदों पर फौजों की नकल हरकत की रिपोर्ट हासिल करना है जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। सियासी हालात ऐसे थे कि मिसेस गांधी किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला करवा सकती थी और इस बार सबसे ज़्यादा दबाव कसूर सेक्टर पर होने वाला था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारत तेजी से हमला करके कसूर को लाहौर से काट कर उस पर कब्जा कर लेना चाहता था। मुझे इस अमर का इशारा दे दिया गया था कि मेरा आइंदा मिशन क्या होगा और किस कदर अहम होगा। इन हक़ की रोशनी में मिस्टर टंडन मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, सबसे बड़ी दीवार थी जो मेरे और मेरे आइंदा मिशन की राह में हाल थी। मुझे इस रुकावट को दूर करना था और इस दीवार को गिरा देना था। बज़ाहिर मिस्टर टंडन का मुझसे सलूक इंतहाई मुशफ़क़ाना हो गया था। मेरे सेक्रेटरी हो जाने के बाद उससे तकरीबन रोज़ ही मुलाकात रहती थी।
वो पहले की तरह बल्कि पहले से ज़्यादा खंदा पेशानी से मिला। सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी का रवैया भी मेरे साथ बड़ा नॉर्मल था। डीजी इंटेलिजेंस की तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि किसी एक एजेंट को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए ताकि हम प्राइम मिनिस्टर को अपनी कारकर्दगी दिखाकर अपनी नौकरी की हिफाजत कर सकें। इसमें कोई शक नहीं था कि मिसेस गांधी की जज्बाती और मुंतकमाना तबीयत के वजह से ये लोग किसी भी वक्त उसकी जद में आ सकते थे। अब ज़रूरी हो गया था कि किसी गैर मुल्की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी एजेंट को पकड़कर पेश कर दिया जाए। अगर पाकिस्तानी एजेंट नहीं मिलता तो किसी भी मुसलमान को पकड़कर उसे एजेंट ज़ाहिर करके प्राइम मिनिस्टर के आगे सुरखरुई हासिल की जाए। मैंने एक मीटिंग में जब यह तजवीज़ पेश की कि मेरे ख्याल में चूँकि साइरस की तबाही की जिम्मेदार श्रीलंका के भारत दुश्मन सनहाली तखरीबकारों पर ऐद होती है, इसलिए हमें किसी न किसी सनहाली एजेंट को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मिस्टर टंडन ने किसी कदर तलखी से कहा, यह सनहाली एजेंटों की नहीं, पाकिस्तानी एजेंटों की कार्रवाई थी। पाकिस्तानी तखरीबकार राजधानी में भी सरगर्म हैं, हमें उनमें से किसी को पकड़ना होगा। इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन के इस खतरनाक कदम के पेश नज़र उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब इस शख्स का जिंदा रहना मेरे मिशन के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगा। मैंने मिस्टर टंडन को हर हालत में ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मैं अभी टंडन को हलाक करने के तरीकों पर गौर ही कर रहा था कि एक रोज़ अपने ऑफिस गया तो तिवाड़ी मेरे कमरे में आया, बड़ा खुश था। मेज़ पर दोनों हथेलियां टिकाते हुए बोला, कैप्टन मेहता, बधाई हो, हम सब की नौकरी बच गई है। रात हमने कमला मार्केट से एक पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा माथा ठनका, कहीं अपना कोई एजेंट तो नहीं पकड़ा गया। मैंने उठकर तिवाड़ी से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे बधाई देते हुए कहा, मिस्टर तिवाड़ी, अब भगवान ने चाहा तो हम पाकिस्तानी तखरीबकारों के सारे गैंग को पकड़ लेंगे। तिवाड़ी कुर्सी खींचकर बैठ गया और सर खुजाते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं कि हमें इस पाकिस्तानी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। मेरे इस्तफसार पर तिवाड़ी ने असल बात मुझे बता दी। कहने लगा कि बात यह है कि हमने महज अपनी नौकरी बचाने के लिए उस आदमी को पकड़ा है। हमारी इतला के मुताबिक यह आदमी पाकिस्तानी जासूस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से यहाँ दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ था। मगर हमें इसे क्या, हमें तो इस वक्त कोई पाकिस्तानी पकड़ना था, सो पकड़ लिया। वो उठकर जाने लगा तो दरवाजे के पास रुक गया। पलट कर बोला, हमने डीजी रामामूर्ति को असल बात नहीं बताई। हमने यही रिपोर्ट दी है कि यह पाकिस्तानी तकरीबकार है और नकली वीज़े पर भारत आया हुआ था। तुम इस बात को ध्यान में रखना। उसने असल बात खोल दी थी और अब मुझे उस बदनसीब पाकिस्तानी की फिक्र लग गई जिस पर जुल्म व तशद्दुद का पहाड़ टूटने वाला था, जो बेगुनाह था, बेकसूर था। ये लोग उस पर बेपनाह तशद्दुद करके उसे झूठा बयान दिलवाने की कोशिश करेंगे कि उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत में तखरीबकारी के लिए भेजा था। फिर उस पर सेरा में प्लांट की तबाही का इल्ज़ाम साबित करके उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। यूं उस बदनसीब पाकिस्तानी को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी जाएगी जो उसने नहीं किया था। एक एतबार से उसे मेरी तखरीबकारी की सज़ा मिलने वाली थी। ज़ाहरी तौर पर मैंने मिस्टर तिवाड़ी के सामने बेहद खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। 1 घंटे बाद जब मिस्टर टंडन से मुलाकात हुई तो मैंने उसे भी बड़े मोहतात तरीके से इस कारनामे पर बधाई यानी मुबारकबाद पेश की। टंडन का चेहरा संजीदा था, लगता था कि वो मेरे दिल को खरीदने की कोशिश कर रहा है। और उसकी आंखें एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर जम गईं। फिर मुस्कराया और बोला, कैप्टन, अगरचा हमारे पास उस पाकिस्तानी तखरीबकार के खिलाफ कोई वाज़ेह शहादत नहीं है, मगर हम उससे सब कुछ मनवा लेंगे। वो हमें सब कुछ बता देगा। मैंने कहा, सर, यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे यकीन है कि जब उस पर तशद्दुद किया जाएगा तो वो सारी बातें उगल देगा। उसकी वजह से हम उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर सकेंगे। मिस्टर टंडन ने हल्का सा सिगार का कश लगाया, मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मिस्टर तिवाड़ी का ख्याल है कि यह एक आम पाकिस्तानी है जो वीज़े पर दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था, लेकिन मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि यह पाकिस्तानी एजेंट है और इससे हमें बाज़ ऐसे पाकिस्तानी एजेंटों के नाम भी मालूम हो जाएंगे जो खुद हमारे महकमे में सरगर्म अमल हैं। मैंने मिस्टर टंडन की बात की पुरजोर तईद करते हुए कहा, यह तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें उस पाकिस्तानी एजेंट पर किसी हालत में भी रहम नहीं खाना होगा। यकीनन पाकिस्तानी तकरीबकार हैं, लेकिन मिस्टर टंडन के दिल में जो भयानक ख्याल छुपा हुआ था उसको मैंने पा लिया था। उसका मंसूबा था कि वो उस बेगुनाह पाकिस्तानी पर अलमनाक तशद्दुद के बाद उससे यह बयान दिलवा देगा कि दिल्ली में उसके जो साथी एजेंट सरगर्म अमल हैं उनमें एक कैप्टन मेहता भी है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता और इसके एवज पाकिस्तानी सफारत खाने से भारी रकम वसूल करता है। यह बड़ा ही खतरनाक काम था
जो मिस्टर टंडन के जहन में था और जिस पर वो यकीनन अमल करने वाला था। मैं मुस्कुराते हुए टंडन की तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, टंडन जी, अब आपकी ज़िंदगी के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तुम अब मुझसे बच नहीं सकोगे। मिस्टर टंडन मुझे कह रहे थे, कैप्टन मेहता, तुमसे ज़्यादा मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि उस पाकिस्तानी एजेंट से तुम ही पूछगछ करोगे। मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हारी ये ड्यूटी लगाई है। इसमें कोई शक नहीं था कि मिस्टर टंडन ने बहुत सोच समझ कर मेरी ड्यूटी लगाई थी। यकीनी तौर पर उसने पूछगछ करने वाली कोठड़ी असल में खुफिया मगर बेहद ताकतवर माइक्रोफोन लगा दिए होंगे ताकि पाकिस्तानी एजेंट के साथ मैं जो भी गुफ्तगू करूँ वो रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि उसे मुझे पहले ही से पाकिस्तान के एजेंट होने का शक पड़ गया था, इसलिए वो चाहता था कि मैं अगर पूछगछ के दौरान पाकिस्तानी एजेंट से हम दरदराना या राजदारी की कोई बात करूं तो मिस्टर टंडन के हाथ एक सबूत आ जाए जिसकी बिना पर वो मुझे भी गिरफ्तार कर सके। मैं इतना अहमक नहीं था। मैंने कहा, शुक्रिया सर, आपने मुझ पर एतमाद ज़ाहिर किया, मैं आपका ग्रेटफुल हूँ। ये पाकिस्तानी एजेंट कहाँ रखा गया है? मिस्टर टंडन ने बताया कि वो लाल किले के एक तहखाने में कैद है। मुझे कहा गया कि मैं शाम को लाल किले में जाकर उससे पूछगछ का सिलसिला शुरू करूँ और दूसरे रोज़ अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करूँ। यह सब कुछ मुझे जाल में उलझाने के लिए किया जा रहा था। मैं भी अपने तौर पर पूरी तरह चौकस था। साथ ही साथ मिस्टर टंडन को अपने रास्ते से हटाने के तरीकों पर भी बड़ी तेज़ी से गौर कर रहा था। शाम को दफ्तर से निकलकर मैं उस पाकिस्तानी शहरी को देखने किले में गया जो अपनी बदकिस्मती की वजह से भारतीय इंटेलिजेंस के फंदे में फंस गया था और अब बज़ाहिर उसका जिंदा बच निकलना नामुमकिन नजर आता था। काले के तहखाने में बिजली का 100 वोल्ट का बल्ब रोशन था। बदकिस्मत पाकिस्तानी के जिस्म पर सिवाय एक फटी हुई नेकर के और कुछ नहीं था। महकमे के 2 पेशेवर मुलाजिम उस पर काफ़ी तशद्दुद कर चुके थे। यह एक नौजवान पाकिस्तानी था। उसकी एक आंख सूज कर सियाह हो रही थी, निचला होंठ फट गया था जहाँ से खून रस रहा था। उसे 2 आदमियों ने पकड़कर तख्ते पर बिठा रखा था। बेचारे का तशद्दुद की वजह से बुरा हाल हो रहा था। उसका सर बार बार ढलक जाता था। मैं जाते ही उसके सामने लोहे की कुर्सी पर बैठ गया और अपने आदमी से कहा, इसका सर ऊपर करो। उस बेदर्द आदमी ने पाकिस्तानी नौजवान के सर को बालों से पकड़कर ऊंचा कर दिया। पाकिस्तानी नौजवान की सूजी हुई आंख बंद थी, दूसरी आंख जरा सी खुली थी। मैंने तहक्कुमान आवाज़ में पूछा, तुम्हारे साथी कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? अगर तुम हमें उनके नाम बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान ने रोते हुए कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, मैं जासूस नहीं हूँ सर, मैं वीज़ा लेकर आया था मामू से मिलने। मैं जासूस नहीं हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। सबसे पहले तो मुझे ये इत्मीनान हुआ कि ये अपना एजेंट नहीं था। अपने एजेंटों के चेहरे मेरे लिए अजनबी नहीं थे, मैं उन्हें पहचान सकता था। ये बेगुनाह पाकिस्तानी था। दूसरी बात यह थी कि इसे मेरे अमाल की सज़ा मिल रही थी। इसको बचाना मेरा फ़र्ज़ बनता था। वैसे भी मैं खुद पाकिस्तानी था। मुझे वतन पाकिस्तानी और मैं अपनी आंखों के सामने एक पाकिस्तानी भाई पर जुल्म व तशद्दुद होते कैसे देख सकता था।